Hello everyone, I am Rahul Nagpal. In this video, I will discuss about the numerical based on the value of Kc, how value of Kc can be calculated using Nernst equation. The detailed theory of this topic has been provided in the lecture number I think 10 or 11, probably 10. You can check over there, you can go there and check the theory, but briefly I will describe it over here again. But the details will be available in lecture number 10. In previous video, I have discussed about the numerical based on the gaseous electrode. Whenever you are provided with the electrochemical cell and in that cell one electrode is gaseous, that type of numerical has been discussed in the lecture number 11b. Okay, now in this video I will discuss about the numerical based on the value of Kc. First of all, let us take the general example of any cell. Let us take that is zinc plus copper 2 positive, giving zinc 2 positive plus copper. Zinc 2 positive plus copper. It is in solid form, and both of these are in aqueous form. What is the value of Kc over here? First of all, write the products. Getting what I am saying? Then write the reactants. Consider the concentrations of the solid states as unity. Okay, if I am considering this state and this state as unity, okay, value of Kc will be equal to Zn2 positive upon copper 2 positive. Value of Kc will be equal to Zn2 positive upon copper 2 positive. Now let us move to the calculation of the Kc. How we can calculate Kc? Let us discuss how we can calculate the Kc. Do you people remember the Nernst equation? That is E cell is equal to E naught cell 0.059 upon N log of anode upon cathode. In this particular case, okay, anode is Zn2 positive and cathode is copper 2 positive. Okay, and this Zn2 positive and copper 2 positive I have discussed earlier. This is equal to Kc. So E cell is equal to E naught cell 0.059 upon N log of Kc. At equilibrium, this is not equal to 0, this is equal to 0. E naught cell 0.59 upon N log of Kc. What beta? Log of Kc. Now E naught cell is equal to 0.059 upon N log of Kc. How we can calculate Kc? Now it becomes more easier. E naught cell into N 0.059 is equal to log of Kc. Anti-log of this term, E naught cell into N 0.059 is equal to log, both side anti-log देंगे, it will be equal to Kc. Now let us take one example with the help of numerical. We can solve this with the help of numerical. House, I am providing you a cell at standard condition range at 298 Kelvin temperature. How we can calculate the value of Kc? Cell is copper plus silver positive, giving copper 2 positive plus a silver. We know that silver is in solid form, it is in aqueous form. To balance this equation, I am mentioning here 2 also. Okay, this is in solid form and this is in aqueous form. Okay, so given you that E naught copper 2 positive copper 0.34 volt, E naught of silver positive silver is equal to 0.80 volt. How much? 0.80 volt. Then E naught cell is equal to E naught cell किसके इक्वल आएगा? E naught कैथोड माइनस E naught एनोड, E naught कैथोड आएगा माइनस E naught एनोड आएगा.
क्या आएगा बेटा माइनस ई नॉट एनोड आएगा, ये आपको दिया अब अपन, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट, 0.80 minus 0.34 volt, it will become out to be 0.46 volt. How much beta? 0.46 volt. How much? 0.46 volt. By this value we can calculate the value of Kc. How? Let us discuss. 0.46 volt. E cell is equal to E naught cell 0.059 upon n log of Kc. Log of Kc at equilibrium position, E cell is equal to 0, E naught cell 0.46, 0.059 upon n, ठीक है। इवन इसको इधर ले गया मैं, 0.46, ये सारा ही इधर आ गया, एक ही स्टेप में कर देता हूँ बेटा, बार बार क्या ही करना है। लॉग ऑफ केसी यही आएगा बेटा, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा, लॉग ऑफ केसी आ गया ना, ठीक है। अब दोनों साइड क्या लोगे, एंटी लॉग लोगे, दोनों साइड क्या लोगे, एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू is equal to Kc, is equal to Kc. Whenever you will solve this term, you will available with 3.92 into 10 raised to power 15. That will be the value of Kc. That will be the value of Kc. एंटी लॉग बेटा मैंने आपको बहुत बार निकालना सिखाया हुआ है, एंटी लॉग मैंने आपको बहुत बार निकालना सिखाया हुआ है। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, Kc की वैल्यू निकाल सकते हो। किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, Kc की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc. Now, next topic is relationship between Gibbs free energy and electrode potential, ठीक है। पहले ये निकालते हैं, उसके बाद अपन केसी से निकालेंगे, ठीक है। दो के बीच में रिलेशन निकालना है बेटा। पहला रिलेशन है गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है, सिंपल सी बात, गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है, दैट इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन। क्या होता है यूजफुल वर्क डन, पिछले साल बात की थी थर्मोडायनेमिक्स में ना, क्या होता है यूजफुल वर्क डन। अब आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसका वर्क डन क्या है, उसका वर्क क्या है, उसका वर्क क्या है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को यूज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा बेटा, प्रोड्यूस करेगा। केमिकल रिएक्शंस को यूज करके केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को, अब जितनी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करेगा उसका क्या होगा बेटा, वर्क डन होगा, उसका क्या होगा बेटा, वर्क डन होगा, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगी केमिकल सेल में, यानी कि वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा, मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा, मैक्सिमम वर्क डन कितना हो गया बेटा, n इंटू एफ क्या है, चार्ज, क्या है चार्ज, चार्ज कितना चार्ज फ्लो करेगा अंडर द, अपन ये कह सकते हैं बट एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट विल बी द इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो एन एफ ई सेल, फर्स्ट आई एम नॉट टेकिंग द स्टैंडर्ड कंडीशन, मान लो ई सेल पोटेंशियल है, सेल का पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये डिसाइड करेगा कितना वर्क क्या है बेटा होना है, कितना वर्क होना है, कितना वर्क होने का मतलब क्या है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है, कितनी क्या बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो जी है, ठीक है, किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, एन एफ ई के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, एन एफ ई सेल के इक्वल आ जाएगा। बट नाउ आई एम टेकिंग द स्टैंडर्ड कंडीशन, विच कंडीशंस बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशंस। अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन आई कैन मेंशन ई नॉट ओवर हियर। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या है, 298 केल्विन, अपन क्या लेते हैं बेटा, टेम्परेचर ले लेते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वी टेक इट एज 1 मोल, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जी नॉट लगा देते हैं। तो ये कौन सी कंडीशंस होगी बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गई। ये कौन सी कंडीशंस हो गई, स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गई। अब
अब आगे देखो बेटा क्या होने वाला है इसमें, ठीक है। तो ये तो अपने पास आ गया ये, है ना। तो आगे इसमें डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कन्वेंशन क्या अपना, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, दो चीजें बताई थी बेटा, एक सिस्टम एक सराउंडिंग, सिस्टम एक सराउंडिंग। अगर सिस्टम वर्क, सिस्टम पे वर्क किया जाता है, वो होता है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम क्या है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क कर रहा है, इसके ऊपर वर्क करना पड़ रहा है, वर्क कर रहा है, क्या है बेटा, ये वर्क कर रहा है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम मींस वर्क इज टेकन टू बी एज नेगेटिव बाय कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन एक रूल है बेटा थर्मोडायनेमिक्स का, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम वी विल हैव टू टेक इट एज पॉजिटिव, एंड इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम वी विल हैव टू take it as negative, we will have to take it as negative, and this work is done by the system, this work is done by the system, and if work is done by the system किस पे किया जा रहा है, then work is done on the surroundings, and this work is taken to be as negative, this work is taken to be as negative, this work is taken to be as beta what, negative, getting what I am saying। तो आगे अब इसका रिलेशनशिप डिराइव करना है बेटा, किसके साथ, केसी के साथ, किसके साथ, के के साथ या केसी के साथ, वो कैसे डिराइव करेंगे देखो इधर। जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ, ई नॉट की वैल्यू क्या आती है, ई नॉट की वैल्यू क्या आती है, ई नॉट की वैल्यू कहाँ से ले सकते हो बेटा आप, सोचो ई नॉट की वैल्यू आप कहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला अभी डिराइव किया था, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आती है, 0.059 अपॉन एन देन लॉग ऑफ के सी, यही आती है। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हुई हैं, ये वैल्यूज़ आपकी कहाँ से आई हुई हैं, कीप इट इन माइंड, ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हुई हैं, ये वाली, ठीक है। अगर आपको ध्यान में है तो मैं बता देता हूँ, अगर ध्यान में नहीं है तो, ठीक है। ये वैल्यूज़ आई हुई हैं आपकी 2.303 R इंटू टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ के सी, है ना, लॉग ऑफ के सी, ठीक है। इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, इस को मैं इस फॉर्म में इधर लिख रहा हूं कैसे, ठीक है। ये देखो अब ई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट की वैल्यू लिख रहा हूं बेटा मैं, किसकी वैल्यू लिख रहा हूं, ध्यान देना बेटा, मैं किसकी वैल्यू लिख रहा हूं, ई नॉट की 2.303 आर टी, क्या बेटा, आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है, लॉग ऑफ वट बेटा, लॉग ऑफ, ठीक है, क्या लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, के सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के सी आ जाएगा, ठीक है। तो जी नॉट इज इक्वल टू एफ से एफ कैंसिल, एन से एन कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है, माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी, लॉग ऑफ के सी, ठीक है। नाउ दिस 2.303 इंटू लॉग, 2.303 into log is equal to natural log, is equal to natural log, then G naught is equal to minus RT natural log of Kc, G naught is equal to minus RT natural log of Kc। अब कुछ एक कंक्लूजन्स हैं बेटा, ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है बेटा, क्या G naught is equal to minus RT natural log of Kc, natural log of Kc। अब कुछ एक कंक्लूजन्स हैं, वो क्या है बेटा, Kc भी, और आप इसको सिंपली K भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, K भी लिखते हैं ना, ठीक है। तो अब कुछ एक कंक्लूजन्स हैं दैट वी विल हैव टू रिमेंबर। अगर जी की वैल्यू नेगेटिव है तो हमें पता है रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्शन क्या है बेटा, फिजिबल है, ठीक है। जी की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, ठीक है, के की वैल्यू एक से ज़्यादा आ जाएगी, के की वैल्यू क्या है बेटा, एक से ज़्यादा आ जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, भर भरा के प्रोडक्ट्स बनेंगे, भर भरा के क्या बनेंगे बेटा, प्रोडक्ट्स बनेंगे। रिएक्शन कहाँ रहेगी बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन में, और अपन ये कह सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, रिएक्शन क्या रहेगी बेटा, स्पॉन्टेनियस रहेगी,
क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। अगर बेटा G 0 है और K की वैल्यू 1 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की अमाउंट इक्वल रहेगी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की अमाउंट क्या रहेगी बेटा, इक्वल रहेगी, क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और जो थर्ड केस का आपका क्या, G पॉजिटिव है और K की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, आपकी रिएक्शन नॉन फिजिबल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से अपन को फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में पता लग जाता है, किसके बारे में पता लग जाता है बेटा, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में पता लग जाता है। कल वाले डिस्कस में वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बेटा, विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉज एंड इलेक्ट्रोलिसिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।